नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार यानी RKB और मैं हूं इस वक्त नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणक्कम in Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa. Pradeep ji. Habariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili and wherever there is interest in India, which is everywhere. By the way, good news and some terrible news. The good news first, the team of Manu Bhaker and Sarabjot Singh has won the second medal, has won India their second medal on the fourth day of the Olympics in Paris. Now that is wonderful news indeed, even though it's a bronze. I hope the color of the medal changes soon. There are two medals that India has won, both bronze medals, and which by the way has been India's best performance so far in the first week of an Olympic event after independence. दो मेडल जीते हैं साहब, दो मेडल। मनु भाकर ने एक इंडिविजुअल 10 मीटर्स एयर पिस्टल में और दूसरा मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ वही सेम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम हरियाणा। प्रदीप जी, मनु भाकर इज फ्रॉम झज्जर इन हरियाणा एंड आवर सरबजोत सिंह इज फ्रॉम अंबाला। Fantastic, sir. दोनों के दोनों हरियाणा के। क्या बात है साहब। Every medal is a great encouragement for this country. लेकिन And जी, prime minister, the हरियाणा में whole कुछ country है। is waiting for these medals. यार ये हरियाणा की मिट्टी में कुछ है यार, मतलब सारे के सारे मेडल वहीं से आते हैं। रेसलिंग भी वहीं से, बॉक्सिंग भी वहीं से, सब कुछ वहीं से। There was a time that all the girls in the running competition, athletics, were all from Kerala. All from Kerala. And now there's nobody from Kerala. Which is sad. I mean, I remember PT Usha, MD Valsamma, yes. Shiny Wilson. The whole bunch and don't remember, and do remember that our girl, what was her name? That long jumper, that lovely looking girl, what was her name? Anu Wilson or something, yes, something. Anjali, yes. somebody or the Yes, other. Joseph, some Joseph. Yes, some George or some George. Yes. Anju Bobby George. Anju Bobby George, yes. That was her name. And they were all from Kerala. So what has happened to Kerala? I really would like to know. I mean, you got that, any kind of running, 400 or 100 hole, alag variety of runnings, everything you found that these girls. Even the sprints. Bilkul, sir. The girls. The relays, PT Usha, Shiny George, ये वो सब मिलके relays भी जीतते, ये भी, Asia में तो all medals where running was concerned was coming to India. Kerala. Yes. And this is in spite of the fact that PT Usha today is chairperson of the IOC, yes. Indian Olympic Association. So all I'm saying is, what has happened to Kerala? अब आप खुद सोचिए, अगर केरल से, हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, मतलब बाकी देश में इतना टैलेंट है, अगर इन सब जगह से अगर आज की तारीख में हमारी युवा पीढ़ी जो है अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो साहब आई एम श्योर 50 गोल्ड मेडल्स इज रीचेबल, इज अचीवेबल वेरी शॉर्टली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी हम लोग खुश हो रहे हैं साहब, 2 ब्रॉन्ज मेडल को लेकर के 150 करोड़ का देश है। अब छोटे छोटे देश में बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू पुट अ damper on these celebrations. अरे छोटे छोटे मुल्क जो है 5-5 गोल्ड मेडल जीत रहे हैं यार, लेकिन फिर भी बिग थिंग फॉर इंडिया। Anyway, very big thing. Cause for celebration. Sir, any medal is a cause for celebration, which is absolutely fantastic. And the very sad news, Pradeep ji, from the home state of your parents. Yes. From Kerala, Wayanad, yes. lots and lots of landslides today, और तकरीबन 106 लोगों की मौत होने की खबर आई है, और काफ़ी लोग जो हैं अभी भी जो क्या कहते हैं मिट्टी के नीचे अभी भी ट्रैप्ड हैं। I hope they are rescued. I hope the rescue starts soon enough. I think the naval commandos have also been sent over there. NDRF team has also been sent over there. I hope it takes place very quickly. And we'll keep bringing you updates as we go along. The Prime Minister has announced compensation of 2 lakh rupees for every person who's dead, next of kin of every person who has just died. And I think the state government of Mr. Pinarayi Vijayan is also going to announce something very shortly. But these landslides are terrible. Why are they occurring? Lots and lots of environmentalists, of course, say that the hillsides have been denuded of all the forest cover, and as a result of it, this is happening. Other people, of course, say there are some other reasons. Anyway, we'll talk about it. We'll keep talking about it as we go along. At the moment, we are joined by 2 very important guests indeed.
we have Mr. Gowde, our very dear old friend. Pradeep Gowde, Advocate Pradeep Gowde. Is he an advocate? I thought he's an And engineer. your favorite friend Asif Faruqi from the International Congress. Isn't Pradeep Gowde an engineer? I think He's an advocate. That is Pradeep Peshkar that you're talking about. Oh, okay, that was Pradeep Peshkar. This is Pradeep Gowde साहब. Yes, yes. Gowde साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे बड़े पुराने मित्र आसिफ फारूकी साहब कांग्रेस से, दोनों के दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं. जनाब नमस्कार आप दोनों को. नमस्कार। नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बाकी सब जो भी मतलब वणकम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सबसे पहले आसिफ फारूकी साहब आप, और उसके बाद मैं आता हूं आपके पास गावड़े साहब. आसिफ फारूकी साहब, जो अभी बजट आया उसको लेकर के राहुल गांधी जी ने एक बड़ी प्रभावशाली स्पीच दी, बहुत प्रभावशाली भाषण दिया. प्रभावशाली इसलिए क्योंकि हर जगह चर्चा में है, जबरदस्त चर्चा में है. आप उनसे एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन चर्चा में है. उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, आपने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं दिया. जो आपने वादे किए थे अभी तक पिछले 11 साल में, वो आपने पूरे नहीं किए. और अभी जो आप नई एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेकर के आए हैं, आप डिपेंड करते हैं, आप निर्भर होंगे 500 कंपनीज के ऊपर कि जो अप्रेंटिसशिप देंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए. बीजेपी का कहना है आसिफ फारूकी साहब कि एज यूजुअल कांग्रेस जो है वो भ्रम फैला रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, जैसा आपने चुनाव के दौरान किया संविधान को लेकर के कि संविधान खतरे में, ऐसा भ्रमित किया. अब बजट को लेकर भी आप बजट को लेकर भी वही चीज कर रहे हैं, यानी लोगों को भ्रमित कर रहा है. आसिफ फारूकी साहब आप बताएं, प्लीज गो अहेड सर. सर, बजट को लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ राहुल जी ने तकरीर की है, और अगर आप बजट का एनालिसिस करें तो ये बात सच है कि लोअर क्लास के लिए स्कीमें तो दी हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा टेक्निकल दुश्वारियां हैं कि लोअर क्लास उसको पूरी करने में असंभव है. आप अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट भी देखें तो इनकी जितनी योजनाएं प्राइम मिनिस्टर की आई हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने अपने स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं कि क्या वजह है जो स्कीमें तो अच्छी हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, उसके लोगों तक पहुंचने में बड़ी दुश्वारी क्यों आ रही है, तो पता ये चला कि उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी है, जो उसके अंदर वो लोअर क्लास कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. और बाकी जो स्कीमें हैं टैक्सेस वगैरह की या जो छूट मिली है वो अपर क्लास के लिए है. मिडिल क्लास के लिए जो पूरा चंक है 80 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन, उसके लिए इनके पास कोई स्कीम नहीं है सर. और उस वजह से राहुल जी ने जो अपनी बात कही है ये उसके डेटा के हिसाब से कही है सर. जी, तो आपके मुताबिक जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि भाई मिडिल क्लास के लिए आपने कुछ नहीं दिया है और बाकी सब लोगों को भी आप मतलब झांसा दे रहे हैं इफेक्टिवली. दैट्स व्हाट राहुल गांधी जी. चक्रव्यूह और शिव की बारात सर, वो चक्रव्यूह. एक सेकंड में लेट्स हियर गावड़े साहब. बिल्कुल. ओपनिंग कमेंट्स फ्रॉम गावड़े साहब प्लीज. बिल्कुल. गावड़े साहब आप जरा बताएं कि बजट जो है आज, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जहां तक बजट का प्रश्न है उसके ऊपर या तो कांग्रेस के लोगों ने पढ़ा नहीं है या तो अच्छी तरह पढ़ लें, और जो स्कीम्स हैं दे आर ऑल डूएबल. कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो हम लोगों ने दी है जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसकी ना हो, जो जमीनी हकीकत से नहीं जुड़ी है. ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने आज कहा है और हिंदी में कहा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया. इनफैक्ट गावड़े साहब अब आप बताएं प्लीज. मुझे ऐसा लगता है ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है. अगर आप कल का उनका भाषण देखेंगे तो कोई भी जो साधारण बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति है वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये बजट के ऊपर भाषण था. अगर आप उनका भाषण देखेंगे तो किस तरह से पूरी गैर जिम्मेदार सभी बातें उन्होंने अपने भाषण में की है. शायद वो ये भूल गए होंगे कि ये बजट के ऊपर भाषण है. वो किसी पब्लिक रैली की तरह या फिर किसी सर्कस की तरह बातें कर रहे थे. अभी जैसे कल उन्होंने कहा, मतलब बजट के बारे में वो कुछ उन्होंने कहा कि हलवा बट रहा है, ये बट रहा है, वो बट रहा है, और हर बार वो एक बात करते हैं कि वो
आप देखिए वो एक फोटो दिखा रहे हैं सेरेमनी का पार्लियामेंट में और पूछ रहे हैं इनमें ओबीसी कितने हैं। तो जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे है, तो वो बताए कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरीज थे, अंडर सेक्रेटरीज थे, अपर सेक्रेटरीज थे, वो कितने ओबीसी थे। देखिए राहुल गांधी ये बात हमेशा इस बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मंत्रियों के बारे में नहीं कह सकते। सभी देश की जनता जानती है कि इस अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें लगभग आधे मंत्री जो है वो ओबीसी समाज के हैं। तो राहुल गांधी ये नहीं पूछ सकते कि ये बताइए मंत्री कितने आपके पास ओबीसी है, वो तो बहुत ज्यादा है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी है, तो वो ये बात पूछते हैं हमेशा, उनकी सुई वहां पे अटकी है कि कितने ओबीसी सेक्रेटरी है। अभी आप सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं, कोई सेक्रेटरी एक दो दिन में नहीं बनता या फिर कोई सरकार आने से नहीं बनता। कोई आईएएस जब ज्वाइन करता है वो प्रमोशन के बाद सालों के बाद वो सेक्रेटरी इस पोस्ट तक पहुंचता है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के जो लोग ये बात कर रहे हैं तो वो पहले देश को ये बात बताए कि उनके समय में कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे। दूसरी बात, कांग्रेस में कांग्रेस की जो वर्किंग कम्युनिटी है या फिर उनका जो राजीव गांधी फाउंडेशन है या फिर और सब चीजें है, उनमें कितने ओबीसी थे? कितने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाए इस देश में? हाँ, कितने आदिवासी प्रेसिडेंट इस देश में कांग्रेस ने बनाए? कितने शेड्यूल कास्ट वाले बनाए? ये कांग्रेस देश को बताए ना। दूसरी बात, जहां तक बजट का विषय है, ये बजट भारत के आखिरी इंसान तक पहुंचने वाला है। ये देश का जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक बेनिफिट पहुंचाने वाला बजट है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस देश में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। 3 करोड़ घर पीएम आवास के अंदर बनाने जाने वाले हैं हम, पहले 3 करोड़ बने हैं। तो ये बात जो कह रहे थे कि ये योजना इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, 3 करोड़ घर तो हम पहले से दे चुके हैं। लगभग 11 करोड़ नहीं, आपकी लगभग 11 करोड़ मैं आपके पास आता हूं, इनको बोलने दें। अरे अभी आप रुकिए। फारूकी साहब एक सेकंड। फारूकी साहब, जब आप बोल रहे थे मैंने आपको टोका नहीं सर, आप बोल रहे थे, आप सीनियर है, आप बोल रहे थे। आपके पास आ रहा हूं। नहीं आपके पास आता हूं, मैंने बिल्कुल टोका नहीं है। मैं आता हूं। आप बिल्कुल, लेकिन आप डेटा से बात कीजिए सर। अरे मैं डेटा से ही बात कर रहा हूँ, आप ही हवा में बात कर रहे थे। जी बोलिए सर। जो टैक्स का जो ये बेनिफिट मिलने वाला है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को मिलने वाला है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो 50,000 का लिमिट था वो 75,000 किया गया है, वो भी लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास को मिलने वाला है। तो ये जो सभी बजट की जो घोषणा है आप सब देखिए, वो इस देश के अन्नदाता को ध्यान में रखकर की गई है, देश के गरीब को ध्यान में रखकर की गई है, देश के युवा को ध्यान रखकर की गई है। और आप देखिए मोदी सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं बनी है, आज तक 10 सालों में नहीं बनी है जिसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो ये भी जो घोषणा है, हमने जो अभी अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे थे आप, वो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसका भी इंप्लीमेंटेशन उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से पिछली हर योजना का किया है। इस देश में पहली बार जनधन अकाउंट के थ्रू करोड़ों लोगों के अकाउंट खोले गए। ये पहली सरकार नहीं कर सकती थी क्या? क्योंकि उनको गरीबों को मेन स्ट्रीम में लाना ही नहीं था, ये उनकी पॉलिसी ही नहीं थी, तो उसकी वजह से वो नहीं किया इन्होंने, हमने किया। आज ये डिनाई कर सकते हैं क्या कि जनधन से लगभग अभी 50 करोड़ लोगों के खाते भारत में ओपन हुए हैं? ये डिनाई कर सकते हैं क्या बात कर रहे हैं गावड़े साहब? मगर अभी क्या प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी का चक्रव्यूह है, एक चक्रव्यूह है और राहुल गांधी जी का शिव की बारात है। चक्रव्यूह में मेन खड़ा है मोदी जी और मोदी जी के साथ अमित शाह के साथ मोहन भागवत जी, फिर अजीत डोवाल, अडानी, अंबानी। तो ये लोग पूरे एक भ्रमित करके पूरे देश को हर स्कीम। तो इसका उत्तर क्या है? बिकॉज उनका स्ट्रैटेजी के 7 साल में 54 लाख जॉब्स चले गए हैं और 18 लाख एमएसएमई बंद हो चुके हैं। गावड़े साहब, ऐसा है इनका जो चक्रव्यूह था कांग्रेस का, उनके चक्रव्यूह से पिछले 10 सालों में देश को बाहर हमने निकाला है। आज आप देखिए इनके चक्रव्यूह से हमने बाहर निकाला है। आज जो देश का जीडीपी है वो रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। सभी इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, वो आईएमएफ होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, वो भारत के लिए बहुत अच्छा फोरकास्ट कर रहे हैं। आज इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। आज भारत का जो ये है विदेशी मुद्रा का भंडार है वो भरा पड़ा है। सभी इकोनॉमिक काउंट्स के ऊपर आज देश तरक्की कर रहा है। तो इन्होंने जो पॉलिसी पैरालिसिस के चक्रव्यूह में देश को अटका के रखा था, उससे हमने बाहर निकाला है। देश के गरीब का, इन्होंने देश के गरीब को चक्रव्यूह में लटका के रखा था, हमने देश के गरीब को, इस देश का जो इकोनॉमिक इंक्लूजन है उसमें हमने देश के गरीब को लाया है, उसको केंद्र बिंदु लाया है। इनकी जो स्कीम थी, इन्होंने देश को भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में लटका के रखा था।
हमने देश को, मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह से बाहर निकाला है। जब इनकी सरकार थी तो देश जानता था, हर रोज एक नया घोटाला सामने आता था। पिछले 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है, एक घोटाले का नाम ये नहीं ले सकते। तो इनका चक्रव्यूह था, इनका चक्रव्यूह जो था वो जो लोग चला रहे थे, वो इनका जो चक्रव्यूह है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और देश के बाहर जो लोग हैं, देश के बाहर जो लोग हैं ये चलाते हैं जी। तो गावड़े साहब जो आपने बात कही, अब मैं आसिफ फारूकी साहब से बात करता हूं। इसके पहले के वो जवाब दें, गावड़े साहब आपने कहा कि कितने एससी और कितने एसटी आपने प्रेसिडेंट बनाए। प्रेसिडेंट के.आर. नारायण वॉज ए शेड्यूल कास्ट, 2 मुस्लिम बने, अपने फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन, और एक ओबीसी बने यानी ज्ञानी जैल सिंह, रामगढ़िया कास्ट के थे। तो एक ओबीसी यानी ज्ञानी जैल सिंह, एक शेड्यूल कास्ट यानी के.आर. नारायणन, और उसके अलावा पहली महिला प्रेसिडेंट भी कांग्रेस ने बनाई। चलिए आसिफ फारूकी साहब, अब आप जवाब दें। जो गावड़े साहब ने कहा कि ये क्या बात है कि बार बार आपको, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप भ्रमित कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो सेक्रेटरीज के बारे में उन्होंने बात करी ना सर, 1992 में ओबीसी रिजर्वेशन का बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में और वो कानून बना। उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं, पहला ओबीसी सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर होगा वो 2026 में आएगा या 2025 में आएगा। फ्रॉम वॉट एवर आई नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट देयर इज अ पर्टिकुलर कार्डर बेस्ड थिंग विच स्टार्ट्स, क्योंकि सबसे पहली जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई वो 1995 में हुई सर। अब आप बोले आसिफ फारूकी साहब प्लीज। तो सर मैं अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रदीप गावड़े जी, एडवोकेट प्रदीप गावड़े जी, बहुत सीनियर आदमी जी साहब से, कि पहली बात तो मैं पर्सनल किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जो भी बात करना चाहता हूँ वो जैसे बजट के बारे में पूछा आप जी, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, या जो देश के हालात हो रहे हैं उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1995 में ये जो शुरुआत की है ये किस गवर्नमेंट ने की है, किसका ये एफर्ट था। दूसरी बात, जो चक्रव्यूह की बात राहुल जी ने कही जिसके ऊपर इन्होंने पर्सनल उंगली उठाई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सर कि 15 से 29 साल का जो यूथ है हमारा, उसमें 83% जो है इस वक्त जॉबलेस है सर। और ये डेटा के बाद ही राहुल जी को ये लगा कि इन जो 83% के नौजवानों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, ये देश के जिम्मेदारों और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि इसको मेन स्ट्रीम में लेके आए, वरना सर्टेन ईयर्स के बाद इनकी जो क्षमता है, अगर ये अनएम्प्लॉयड रह गए तो इनके अंदर जो है देश के लिए काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये चक्रव्यूह के बारे में उन्होंने ये बात निकाली है कि हमारा देश का यूथ कहाँ जा रहा है, इनके लिए क्या स्कीमें प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे। ये सिर्फ बात करने से या जुमलेबाजी से तो देश की स्कीमें नहीं चल सकेंगी सर। तो आप ये बताएं आसिफ फारूकी साहब, मुझे मालूम है कि आप खुद एमएसएमई चला रहे हैं, आप खुद बहुत फेमिलियर हैं किस प्रकार बिजनेस चल रहा है, किस प्रकार नहीं चल रहा है। तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? आज की तारीख में जितने लोग आपके पास पहले काम करते थे, वो mouthshut.com वगैरह वगैरह जो सब आप चलाते थे, अब कितने हैं? आईटी सेक्टर में सर जॉबलेसनेस आ गई है, गवर्नमेंट को कुछ फिक्र नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी ये अप्रेंटिसशिप के लिए कहा है, वो किसके ऊपर लादा कि जॉब क्रिएट करने के बजाय उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से कहा है कि हम इनसे कहेंगे कि ये अप्रेंटिसशिप अपनी कंपनियों में दे। एक बात बताइए सर, जो प्राइवेट बिजनेसमैन खुद परेशान है, जो अपनी कंपनी चलाने के लिए वो खुद परेशान है, वो कैसे आपकी गवर्नमेंट के बोलने के बाद जो है एक और उसके ऊपर आपने परेशानी लाद दी। और ये वो कंपनियां हैं जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग चलाते हैं, तो उनके ऊपर आप दबाव डाल के डेफिनेटली काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसा काम करती है? फारूकी साहब, मोदी साहब ने आंकड़ा दिया है 2004 से लेके 2014 तक आपने सिर्फ 2.9 करोड़, द कांग्रेस वाज ओनली गिवन 2.9 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, वेराज मोदी जी का कहना है 2014 से लेके 2024 तक मोदी जी ने 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। दैट्स ह्यूज,
दैट्स ह्यूज, एक जबरदस्त। और मुद्रा लोन जैसे मिडिल क्लास और जो छोटे उद्योग को उठाने के लिए मुद्रा लोन जो दे दिया है 10 से 20 लाख, तो क्या आपको ये नहीं लगता आसिफ फारूकी साहब सरकार की तरफ से एफर्ट्स है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है? फारूकी साहब सर ये स्कीम है, लेकिन स्कीम का ये लाभ उठाने की क्षमता जो है लोगों के अंदर कम है। इससे मुझको लगता है कि नुकसान ज्यादा होगा। 10 लाख रुपए लोग लेने के बाद उनकी पोजीशन रिटर्न करने की नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी स्कीमें जो है वो बहुत ही मुश्किल से उनसे मिल रही है और जॉबलेसनेस बढ़ रही है, बिजनेस कम होता जा रहा है और उसका लाभ उनको सही तरीके से पहुंच नहीं पाएगा सर। जी, आपके मुताबिक ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट। सो गावड़े साहब, जो आपने अपनी उंगली उठाई उस टाइम पे, आई एग्री, आई नो व्हाट यू आर अबाउट टू से, लेट्स बी वेरी क्लियर। 1992 इंदिरा सोनी केस, गावड़े साहब, वी ऑल नो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद 50% का सीलिंग भी आया। लेकिन आज की तारीख में बार बार जब भी कोई भी इशू आता है उसमें कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता है, भले राहुल गांधी हो, भले आदरणीय, क्या नाम है सर उनका, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, उनका नाम अभी मेरी जबान से हट रहा है, वो केरला के जो हैं, वेणुगोपाल, नो सर, नो नॉट केसी वेणुगोपाल, द अदर जेंटलमैन, वेरी आर्टिकुलेट, शशि थरूर साहब, वो हो गए। और राज्यसभा में हमारे खड़गे साहब हो गए। बार बार कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करते हैं। उनका कहना यह है कि जब तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा, जब तक एम्पेरिकल डेटा नहीं आएगा आपके पास ऑन कास्ट बेस्ड सेंसस, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज? जो भारत के रिसोर्सेज हैं, जो जिस ओबीसी कैटेगरी में, जैसे ओबीसी में 1A 2A 3A जो भी कैटेगरीज हैं, उसमें हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट? देखिए साहब, SC ST का तो बहुत क्लियर है कि किस प्रकार उसको चलना चाहिए, लेकिन जहां तक ओबीसी का प्रश्न है, इनका यह कहना है कि ओबीसी की पॉपुलेशन बड़ी है, माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बड़ी है, उस हिसाब से हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिजर्वेशंस। गावड़े साहब, नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही है। अभी देखिए, ओबीसी का जो मतलब राहुल गांधी या फिर कोई जो ये जो मांग है कास्ट बेस्ड इसकी सेंसस की, हम प्रिंसिपली इसके अगेंस्ट नहीं है। ये अमित शाह जी ने बार बार कहा है। हमारा मानना यह है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो पॉलिटिक्स का एक हथियार ना हो। राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो प्योरली पॉलिटिकल है। कांग्रेस का जो हिस्ट्री रहा है वो दलित विरोध का रहा है, वो ओबीसी विरोध का रहा है, और आज आप सिर्फ राजनीति के लिए ओबीसी या फिर दलित को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप हर चीज में मतलब जैसे मैंने आपको कल ही अभी पहले ही बताया कि वो फोटो दिखाकर बताइए इसमें इतने ओबीसी कितने हैं। पहले से आप देखिए कांग्रेस की पॉलिसी क्या रही है। मतलब जब रिजर्वेशन आ रहा था तो अंबेडकर जी की भूमिका थी कि ये 10 साल में इसके लिए इनफ नहीं है। तो उस वक्त का जो कांग्रेस था उन्होंने उसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग किया और उसको 10 साल रखा। बाद में आप देख सकते हैं कि उसको हर बार हमको रिन्यू करना पड़ा। तो ये 10 साल कांग्रेस हर बार आरक्षण के विरोधी रही है। राजीव गांधी ने क्या कहा था? राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण देकर हम बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं दे सकते, ये राजीव गांधी ने कहा था। उसके बाद आप देखिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नेहरू जी ने जो रिजर्वेशन लेने वाले लोग हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन कहा था। नेहरू जी के बाकायदा वो लेटर्स है जो उन्होंने सीएम्स को लिखे हैं और जिन्होंने उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरक्षण की भर्त्सना या फिर आरक्षण का विरोध नेहरू जी ने किया है। मंडल कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ओबीसी के लिए सबसे बड़ा वरदान था। वो मंडल कमीशन आया कब? जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो मंडल कमीशन को हमने एस्टेब्लिश किया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आपके सपोर्ट, हम थे उस गवर्नमेंट में, हम जनता पार्टी सर, जनता दल नहीं। मैं आपको वीपी सिंह ने किया सर। नहीं आपको बताता हूँ। आसिफ फारूकी साहब, मंडल कमीशन एक्सेप्ट की गई जनता पार्टी के वक्त, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ गावड़े साहब बोलिए। मैं पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूँ। जी। उसका जो ये है रिपोर्ट है वो जब हमारी गवर्नमेंट गई उसके बाद आया। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट 10 साल 1980 में आया सर। हाँ, मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1980। 1980 यस। उस वक्त 80 से लेकर 90 तक 10 साल देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों ने मंडल कमीशन को लागू किया क्या? नहीं किया। उसके बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई जिसको बाहर से समर्थन हमारा था। हमने मंडल कमीशन को लागू किया है, आपने नहीं किया। तो ओबीसी के सबसे बड़े जो दुश्मन है वो आप लोग हैं।
जो मंडल कमीशन को दबा रहे थे वो आप लोग हैं। नहीं तो सर, आप लोग VP ओबीसी सिंह की को बात उसी नहीं बेस कर पे सकते। आपने गिराया। नहीं गिराया। No, वीपी सिंह एक को, मिनट, वीपी एक सिंह मिनट। की गवर्नमेंट का हमने जो, नहीं बताता हूं मैं आपको, जब आडवाणी जी को अरेस्ट किया उसके बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट का हमने सपोर्ट को विड्रॉ किया, और वो घटना बहुत बात की है, आप मिक्स मत कीजिए इसको। हमने मंडल कमीशन को पूरी तरह से समर्थन किया, और जब आडवाणी जी को अरेस्ट किया था रथ यात्रा के दौरान, उस वक्त हमने समर्थन को विड्रॉ किया था। सर ये कहा जा रहा है गावड़े साहब, ये ये कहा जाता है कि आप बहाना ढूंढ रहे थे मंडल कमीशन के की स्वीकृति मिलने के बाद, आप बहाना ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को गिराया जाए। ये भी प्रचलित है जी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि टाइमलाइन अगर देखें कि अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रदीप जी एक सेकंड, लेकिन बोट क्लब के ऊपर आप ही के उस वक्त के डॉक्टर जेके जैन और उसके अलावा आरएसएस के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज थे, डॉक्टर जेके जैन मंडल के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे 16 दिन तक। सर ये भी सही है। अब आप बोले गावड़े साहब, आप कुछ खत्म करना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, इंडिविजुअल कोई कुछ कर रहा होगा, उसकी एज अ पार्टी हमारी पॉलिसी क्या थी, और हमने मंडल कमीशन, जब उसका मंडल कमीशन आया उस वक्त भी हम सरकार में थे, और जब इंप्लीमेंट हुआ वो भी सरकार हमारे नहीं, आप सरकार में नहीं थे, यू वर सपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। सपोर्टिंग, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, हमारे बलबूते पे वो सरकार थी जी। तो मंडल कमीशन को हम लोगों ने लाया है, और कांग्रेस ने 10 साल तक मंडल कमीशन को दबा के रखा था, ये रिकॉर्ड है, ये कोई बदल नहीं सकता। अभी आप देखिए, बट यू नो यहाँ पर राहुल गांधी कल बहुत ड्रामेटिक थे। गावड़े साहब मैं आप ही को पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने यह कहा कि मिडिल क्लास हमेशा आपके साथ है, हमेशा बीजेपी के साथ है। कोविड के वक्त आपने बोला घंटी बजाओ, तो मिडिल क्लास ने घंटी बजाया। कोविड के वक्त मोदी साहब ने कहा टॉर्च जलाओ, तो मिडिल क्लास ने मोबाइल चालू करके टॉर्च जलाया। मगर आपने बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं किया, आपने प्राइस राइज, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया। दैट हैज डिस्ट्रॉयड द मिडिल क्लास, द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन। गरीब खत्म हो चुके, मिडिल क्लास खत्म हो चुके। कल अब ड्रामेटिक तरीके से राहुल गांधी जी ने उसको पेश किया। गावड़े साहब, नहीं, राहुल गांधी मतलब मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो मतलब कोई भी बात तथ्य के आधार पर नहीं रखना चाहते। कोई भी बात वो तथ्य के साथ नहीं रखना चाहते। अगर आप सभी रिकॉर्ड्स देखेंगे तो मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की प्रगति इस देश में हुई है। इस देश में जब हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के समय में 80-90 हजार था तो वो ठीक था। आज जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो 2.25 लाख रुपए है। तो प्रगति हुई है, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है कि क्या हुआ है, ये बता सकते हैं आप? कांग्रेस के समय में जब इन्फ्लेशन 10% डबल डिजिट में गया था तो उस समय वो ठीक था, और आज जब इन्फ्लेशन 5% से भी नीचे है तो हमने बहुत अच्छा गवर्नेंस देने का काम किया है। हमने आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदाराना प्रतिपक्ष के नेता हैं और कभी तथ्यों के ऊपर बात नहीं करते, ऐसा कहा जा रहा है। फारूकी साहब, सर इनके 5 दिग्गज नेता को खड़ा होना पड़ा उसी पार्लियामेंट हाउस में जी राहुल जी की स्पीच के ऊपर, और वो उसका जवाब नहीं दे सके। आप इनके काम को देख लीजिए कि ये प्राइस राइज को नहीं रोक सके। बैंक की सेविंग जो है 10% से सर 5.1% पे आ चुकी है, और लैक्स ऑफ जॉब जो है हर सेक्टर के अंदर नीचे गिर चुकी है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारा यूथ बेरोजगार होता चला जा रहा है। ये इनको इसमें मिर्ची लगती है तो हमको क्या उसमें है सर, हम क्या कर सकते हैं इसके? सर आज एक, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आजम फारूकी साहब एक सेकंड लूंगा, आप ही बोलिए क्योंकि अभी आपको जवाब देना है। इमरान प्रतापगढ़ी आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, महाराष्ट्र से हैं। वैसे ओरिजिनली तो प्रतापगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो मेंबर जो है राज्यसभा के यहाँ से हैं। गावड़े साहब आपको भी सुनने वाली बात है, उसके बाद आप बोले। पहले फारूकी साहब को इसका जवाब देने दें। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप इन्फ्लेशन का रेट बता रहे हैं, लेकिन इतना बता दीजिए कि टमाटर जो 100 रुपए का बिक रहा है अभी, 100 रुपए किलो का जो बिक रहा है, वो कब कम होगा, ये बता दीजिए। और दूसरी चीज,
महाराष्ट्र जो इंजन है प्रोग्रेस का, भारत का फाइनेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंजन है, उसके लिए आपने कुछ नहीं दिया बजट में। अपनी बजट स्पीच में यहां तक के महाराष्ट्र का जिक्र भी नहीं किया, ऐसा इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा है। फारूकी साहब, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये हकीकत है, इससे पहले गैस की प्राइस हो, पेट्रोल की प्राइस हो, अगर 2 रुपए 1 रुपए भी बढ़ जाती थी कांग्रेस के जमाने में, तो पूरा बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता सड़क पे आ जाता था और ये ऐसा बताता था जैसे पूरा देश लुट गया। आज की तारीख में सर प्राइस राइज इतनी जो हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लीजिए, एक आम जनता जो गैस यूज करती है घर में खाना पकाने के लिए, उसकी 4 गुना उसकी प्राइसेस हो गई है। बीजेपी का कोई नेता इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से प्याज का, टमाटर का और दूसरे हमारे घर के अंदर खाने का प्राइस बढ़ी है, सर ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के, ये तो बड़े लोगों के लिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है सर। और जैसे एक साहब ने सुबह ही कहा कि मोदी जी के आंख के 2 तारे हैं, A1 और A2, अंबानी और अदानी, तो मेरे ख्याल से ये 2 लोगों के लिए गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है सर। आसिफ फारूकी साहब, आप जरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिस्ट देख लीजिए। 2 दिन पहले उन्होंने कहा 15 करोड़ जल से नल से जल, हमने नल से जल 15 करोड़ घर में दे दिए। पीएम किसान हमने किया, आवास योजना में 4 करोड़ दिए, आयुष्मान 10 करोड़ घर में गया, उज्ज्वला 11 करोड़ घर में गया, शौचालय करीबन 12 करोड़ घर में। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं फारूकी साहब, ये काम के आंकड़े हैं। तो क्या आप निगेट कर सकते हैं कि 10 साल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? जो बीजेपी का कहना है कि 10 साल अमृतकाल, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे। फारूकी साहब सर, ये आंकड़े सिर्फ पेपर के ऊपर हैं, आप रियलिटी में जाके देखेंगे तो ये लोग इसका पर्सनल लेवल पे पॉलिटिकल और कम्युनल फायदा उठाते हैं। उसमें ये देखते हैं कि ये किस रिलीजन का और किस सेक्टर का और किस समाज का इंसान है, इस वजह से इनकी स्कीमें फेल हो रही हैं। वरना इनकी स्कीमें बहुत अच्छी थी और ये लोअर क्लास के लिए बड़े काम की थी। लेकिन जब आप 16th पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये स्कीमें जो बीच के लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो अपने एडवांटेज के लिए इसको अपने तरीके से फेरबदल करते हैं, जिसकी वजह से इसको जो रियल लोग हैं उनको फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। गावड़े साहब, आप कह रहे हो, इनका कहना है कि नल से जल 15 करोड़ डेफिनेटली आपने दिया होगा, मगर उस नल में जल नहीं है, नल में जल नहीं है गावड़े साहब। और आप, उनका कहना है कि आप एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े दे रहे हो कि मोदी साहब ने 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। आज 2 दिन गए हफ्ते एयर इंडिया में 10 यानी 200 पोस्ट के लिए करीबन 25,000 लोग जमा हो गए। फुटेज आपको दिखा देंगे, अभी हमारे इंजीनियरिंग फुटेज दिखा देंगे। यूपी में अराउंड 50,000 कांस्टेबल के जॉब थे, 50 लाख वहां पर जमा हो गए। गुजरात में कुछ 13 पोस्ट के लिए वहां स्टैम्पेड हो गए थे एम्प्लॉयमेंट। क्या ये हकीकत जो है, आपने रोजी पिक्चर पेंट किया है, नल से जल 15 करोड़, आयुष्मान इतना, एम्प्लॉयमेंट 12 करोड़, आरबीआई का एस्टिमेट है कि 8 करोड़ हमने जल, बट हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और है गावड़े साहब, टोटली डिफरेंट। इसका कोई आंसर है? इतना जो एम्प्लॉयमेंट का लाइन और स्टैम्पेड हो रहा है गावड़े साहब। पर 2-3 बातें कही आपने, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी पहले कुछ बातें कही और आपने भी कुछ बातें कही, मैं सभी का उत्तर देता हूं। पहली बात हुई महंगाई की, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात की। आज मेरा मतलब कौन बनेगा करोड़पति का सबसे बड़ा सवाल है इनसे कि सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल कौन से राज्य में बिक रहा है? तो कांग्रेस की सरकारों में बिक रहा है। तो ये महंगाई की बात ना करें। दूसरी बात, महाराष्ट्र को बजट में कुछ नहीं मिला, ये बात सर कौन से राज्य में? महाराष्ट्र को सर कर्नाटक में बिक रहा है, नहीं किसमें? कर्नाटक में बिक रहा है, कर्नाटका में कहां पे? बैंगलोर में? कर्नाटक में बिक रहा है, हिमाचल में बिक रहा है, हिमाचल में और कर्नाटका में। लेट मी चेक। दूसरी बात जो बोलिए सर, आप बोलिए कुछ नहीं, महाराष्ट्र को बजट में कुछ नहीं मिला, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही जी। मुंबई मेट्रो के लिए पैसा मिला है, नागपुर मेट्रो के लिए पैसा मिला है, पुणे मेट्रो के लिए पैसा मिला है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और विदर्भ की जो सिंचाई योजना है उसके लिए पैसा मिला है। ये दूसरी बात। सर, टुडेज डीजल प्राइस इन कर्नाटका is 88 rupees 94 paisa.
In Mumbai, it is 89 rupees 65 paisa, sir. In Mumbai. आप सभी कांग्रेस के और कर्नाटका की बात कर रहा हूं, आपने कर्नाटका का नाम लिया इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, अभी पेट्रोल भी चेक कर लेता हूं। I'll check, आप बोलिए सर, बोलिए। We'll check petrol also। प्रदीप जी, दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर दूसरी को बात, फॉलो करते दूसरी हैं बात, सर, जी। ये पक्की दूसरी बात बात, है। जब ये जुमलेबाजी में दूसरी बात, एक्सपर्ट है सर। दूसरी बात, जी जी, दूसरी बोलिए बात, बोलिए प्लीज। जब आंकड़े कुछ दे रहे थे, अभी प्रदीप जी आंकड़े दे रहे थे, तो ये कहते हैं नहीं, ये आंकड़े तो सिर्फ कागज के ऊपर है। इस तरीके कैसे चर्चा हो सकती है? मैंने ये पहले ही कहा कि ये आंकड़ों के साथ कोई बात नहीं करता, ये गैर जिम्मेदाराना बातें सभी करते हैं, और उसके बाद अगर आप आंकड़े देते हो तो ये कहेंगे कि नहीं, ये तो कागज के ऊपर आंकड़े। जी। तो ये कांग्रेस का मतलब चरित्र रहा है, ये सिर्फ हवा में बातें करना चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट की जो सभी योजना है वो आखिरी इंसान तक पहुंची है, और उसकी वजह से जनता ने हमको तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। जी। एंड पेट्रोल प्राइसेस 88.94 सर। In Bangalore right now it is 88 rupees 94 paisa. In Mumbai it is 104 rupees sir. नो सर, पेट्रोल कैसे 88 रुपए होगा वहां पे? है सर, वहां पे डीजल ज्यादा है। नो सर, कर्नाटक में डीजल ज्यादा है सर। I'll check again. मैं आप I shall check again. But the highest priced diesel and petrol, sir, by the way, is in Jaipur. That is in Rajasthan. I didn't want to bring this up. That is the maximum नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान में। But anyway, you may be right also. I don't know. It is 104 rupees right now. नहीं, मैं आपको In 2014, when the Congress government left, at that time it was 72 rupees, sir. Right now it is 104 rupees. Petrol. तो मेरा ये कहना है सर, and I also know why उस वक्त you are per capita incapable. income, नहीं, उस वक्त पर कैपिटा इनकम सर 80,000 थी। अगेन आज सर, आप पर capita कैपिटा इनकम पे जा रहे है। हैं सर। उस वक्त सब्सिडी थी जिसका इंटरेस्ट अभी आपको पे करना पड़ रहा है, सीधी बात है। आज उस वक्त भी सिलेंडर के जो ऊपर ऑयल पूल है, सब्सिडी सर। थी, आज सब्सिडी नहीं, आज सब्सिडी नहीं है। ऊपर सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली मिलती है लोगों को। जी। आज सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी नहीं है क्या? उसके बावजूद जो है एलपीजी का सिलेंडर जो है वो 900 रुपए का है सर। क्या बात कर रहे हैं सर? 805 रुपए कीमत है सर महाराष्ट्र में। चलो 805 रुपए, इस 100 रुपए कम हो गई, लेकिन उस वक्त तो 450 था सर, 500 था। जब 500 का 600 हुआ, वही आसिफ फारूकी साहब कह रहे हैं हर जगह पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया सर। नहीं जी ना गावड़े साहब, 50% ऑफ मोदी साहब का खुद का कहना कि 50% ऑफ द फार्मर्स आर इन ह्यूज डेब्ट। मोदी साहब खुद कहा कि 50% फार्मर्स जो है किसान डीप कर्जे में डूबा हुआ है। तो क्या ये एमएसपी लीगलाइजेशन जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, ये सब मींस इफेक्ट करते थे मोदी जी अगर, तो किसान को रिलीफ नहीं मिलता? भले पीएम किसान आपने किया ना, बहुत सारे किसान लोग को महाराष्ट्र में डबल के फायदा है कि सेंटर भी दे रहे, स्टेट भी दे रहे, बीजेपी रूल स्टेट्स में। बट क्या लीगलाइजेशन, एमएसपी ये सब करते तो किसान को और फायदा नहीं होते? आप कांग्रेस का कहना है आपने उनका युवा न्याय छीन लिया, जो 1 करोड़ वो बोल रहे थे कि बच्चों को हम लोग इंटर्नशिप दे देंगे 1 लाख रुपया पर ईयर, आपने उस स्कीम को चुरा लिया गावड़े साहब, उनका कहना है। और आपने 10,000 का करीब 8,500 का 5,000 कर दिया। बट पीएम अब जो किसान का थोड़ा कर सकते थे आप गावड़े साहब। नहीं, राहुल गांधी जी की जो कुछ योजना है वो जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे इंप्लीमेंट करे ना। देश की जनता देखे कि किस तरीके से खटाखट पैसा मिलता है। जो वादे उन्होंने युवाओं को किए थे वो कर्नाटक में करके दिखाए, हिमाचल में करके दिखाए, और उनके जहां पे सहयोगी पार्टी की सरकार है वहां पे करके दिखाए। वहां पे नहीं करेंगे, वहां पे तो सेंटर के पास जाके बैठेंगे कि हमको पैसा दे दो, वो नहीं करेंगे वहां पे। दूसरी बात किसानों की, इस देश में अगर किसानों को सबसे पहले किसी ने डायरेक्टली कुछ सहायता भेजने का काम किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। हमने किसान सम्मान के थ्रू 6,000 प्रति वर्ष किसानों को पैसा मिल रहा है। भाजपा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसमें और इजाफा किया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? आज आप देखिए फसल बीमा की जो योजना है उससे रिकॉर्ड फसल बीमा लोगों को मिल रहा है। दूसरी बात, आज ही शिवराज सिंह चौहान जो हमारे देश के कृषि मंत्री है, उन्होंने एमएसपी के बारे में कांग्रेस का जो दोगलापन है उसको पार्लियामेंट में उजागर किया है। तो एमएसपी के समय एमएसपी के बारे में जो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट आया था उसके वक्त कांग्रेस की भूमिका क्या थी? तो सर अभी क्या इम्प्लीमेंट करेंगे क्या आप? स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया गया है, तो क्या स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं
क्या ये सरकार उनको इंप्लीमेंट करेगी? जरा सोच के बताएं सर, क्योंकि उनको इंप्लीमेंट करना मेरी समझ में तकरीबन नामुमकिन है। इट इज नॉट पॉसिबल। ये कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की मांग है कि आप एमएसपी के बारे में आप लॉ बनाइए जी, वो कांग्रेस की मांग है। तो जब स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट आया था उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं किया जी? तो सर आपने तो पेट्रोल के बारे में बात करी थी। आई हैव द फिगर्स हियर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Highest price of petrol in India today is in Thiruvananthapuram, which is 107.56 per liter in Kerala. उसके बाद सर पटना 105.18, जयपुर 104.58, Hyderabad 107.71. Then after that we have Bangalore 102.56, Gurgaon 94.90, and Mumbai is 104 rupees, sir. So it's all a mixed bag. ऐसा नहीं है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में ज्यादा है, कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट में कम है, या बीजेपी रूल्ड स्टेट में कम है। सर हर जगह पर है। लेट्स बी वेरी क्लियर। And by the way, I can understand why. Let's be also get this for the information of our viewers. हो सकता है कि हमारे दोनों के दोनों जो प्रवक्ता हैं इस वक्त वो मुझसे एग्री ना करें। फैक्ट इज आज की तारीख में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस स्थिति में नहीं है कि वो एक्साइज या वैट पेट्रोल पे कम कर दे, नहीं कर सकती, बिकॉज पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, वेयर डू यू गेट रिसोर्सेज फ्रॉम? यू कांट। एंड नंबर टू, in so far as subsidy is concerned, the oil pool account of the Dr. Manmohan Singh government that placed a huge burden on the next government, which was the Modi government. आज तक हर 3 साल के बाद पता नहीं 70,000 करोड़ का या 80,000 करोड़ का सर उस पर इंटरेस्ट जाता है। सीधी सादी बात है। So they wanted to get out of that. Let's also be very very clear on that. I want to know, आसिफ फारूकी साहब, आप कह रहे हो कि सरकार ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सरकार अडानी अंबानी के लिए बिखा हुआ है, एक मोनोपोली क्रिएट किया, सेंट्रल एजेंसीज उनके साथ है, पॉलिटिकल सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। बट मोदी जी, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है दिस इंडिया इज ग्रोइंग एट 7% जीडीपी ग्रोथ है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स आपके काल में, मोदी जी ने फिगर्स दिए, आसिफ फारूकी साहब, मोदी जी ने डिफेंस एक्सपोर्ट आपके कार्यकाल में 10 साल में 1522 करोड़ था, मोदी जी ने आज 21,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर दिया है। 14 फोल्ड लीप। आसिफ फारूकी साहब, मोदी 3.0, उन्होंने कहा थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, मेरा वादा है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 3 करोड़ घर में दूंगा और 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाऊंगा। आसिफ फारूकी साहब, सब दिख रहा है, पूरे दुनिया देश का तारीफ कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमने मोनोपोलाइज कर दिया है, ये अडानी अंबानी का चक्कर है, ये 6 लोग चक्रव्यूह के बीच में पड़ा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अपने NSA चीफ, अडानी अंबानी, क्या कैसे ये आरोप है? ऐसे बीजेपी का कहना है। फारूकी साहब सर, हमारे देश का ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त 60 से 70% हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं। और राहुल जी का जो बोलना है कि ये डेटा मिलने के बाद प्राइम मिनिस्टर को इन नौजवानों की फ़िक्र होना चाहिए, इनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। जबकि मैंने इससे पहले भी कहा कि 15 से 29 साल के जो बच्चे हैं उनमें 83% जो है जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। ये जॉबलेसनेस की वजह से देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी अच्छी है और आज इंटरनेशनल मार्केट से हमको सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये नौजवान अपने खुद के ज़रिए निकाल रहे हैं, काम लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस देश की इकोनॉमी जो है अच्छी इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर हो रही है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमको मदद नहीं मिल पा रही है, या जो स्कीमें गवर्नमेंट से मिलती हैं वो स्कीमें रद्द हो जा रही हैं, क्योंकि आदमी या तो उसको पर्सनल लेवल के लिए यूज़ कर रहा है, पॉलिटिकली अपने फेवर में करने के लिए यूज़ करना चाहता है, या रिलीजियस लेवल पे उसको इन कैश कराना चाहता है, जिसकी वजह से ये चक्रव्यूह का वर्ड आया, राहुल जी ने यूज़ किया, और इकोनॉमी को ख़राब करने में इन सब स्कीमों को जो नहीं पहुंच पा रही है उसका बड़ा हाथ है। वरना यूथ बहुत प्रॉमिसिंग है इंडिया का, और अगर इसको थोड़ा सा सहारा मिल जाए और गवर्नमेंट उसका साथ दे दे, उसके लिए नई स्कीमें लेके आ जाए, जैसे ये पढ़ाई वाले बच्चे थे, आप नीट का जिस तरीके से स्कीम हुई है, जिस तरीके से ये सारा
गड़बड़ी हुई है पढ़ाई, आज प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर कोई भी बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच में आपने पिछले दिनों 2 दिन पहले जिस तरीके से ये बच्चे, पढ़ाई वाले बच्चे पानी के अंदर, बेसमेंट के अंदर मर गए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सब काम गवर्नमेंट का होता है कि इन बच्चों की हिफाजत करे। बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, ना कि कोई पॉलिटिक्स करने के लिए जाते हैं। सहयोगी की सरकार है वहां पे। जी नहीं, आप किसी की भी सरकार हो, हमारी ही क्यों ना हो, अगर कोई बच्चा नौजवान मरता है और उसकी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर देखभाल नहीं कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी सरकार जिम्मेदार है। चाहे मुख्यमंत्री बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, हर चीज के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। नहीं, बिल्कुल, सेंटर के अंदर अगर एमसीडी नहीं जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है वहां पे, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। सर, आपको उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। आपको उसके लिए आप कुछ ना कुछ, नीट का इतना बड़ा घपला हुआ सर, आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज नहीं उसके ऊपर कहा। इतने नौजवानों को, कम से 30 से 40 हजार बच्चों को उसका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप अगर डेटा उठा के देख लीजिए, उन बच्चों का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया है, उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है। आप उन बच्चों से पूछिए कि क्या होने वाला है उनकी जिंदगी में, वो आगे क्या करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स जो है पढ़ाई में गुजारे, और आखिर में वो घपला हुआ। मेरे हिसाब से तो उन घपले वालों को प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट को उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनको फांसी में लटका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई छोटा काम नहीं किया सर। ये पिछले कई सालों से वो काम करते हुए आ रहे थे, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे जिस तरीके से घपला हुआ है। लेकिन आसिफ फारूकी साहब, ये बात तो ठीक है। गावड़े साहब, आप ये बताएं, यूपी के अंदर भी कोई 17 बार पेपर लीक हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए, और इस तरीके से बहुत अलग अलग चीजों में पेपर लीक हुआ है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ माफिया, देयर इज एन इंटरस्टेट माफिया व्हिच इज वर्किंग। द सीबीआई इज वर्किंग ऑन इट, आई एग्री। काफी लोग अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन जो पॉइंट आ रहा है आसिफ फारूकी साहब जो बोल रहे हैं, मैं उसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं गावड़े साहब। वी हैव अ यंग पॉपुलेशन राइट नाउ, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग। दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज, बट दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन यंग फॉर एवर। हमारे पास एक सिर्फ 10 साल की विंडो है सर गावड़े साहब, ये 10 साल की विंडो हम लोगों को यूटिलाइज करनी है, अदरवाइज वी विल मिस द बस। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बहुत हालत खराब होने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्रिटिसिज्म, इट मे बी एग्जैजरेटेड, एंड वो मीम जो बनाते हैं उसमें इट लुक्स वेरी गुड, लेकिन फिर भी बोलना यहां अनिवार्य हो जाता है। लोगों ने कहा बजट ऐसा है, पे टैक्सेस लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। अब आप बोलेंगे गावड़े साहब प्लीज। नहीं, पहले तो आपने परीक्षाओं का कुछ जिक्र किया जी, जहां पर ऐसी वारदातें हुई है वहां पर I think we've just lost it. I think he must be getting a call. मुझे लग रहा है गावड़े साहब को कोई फोन आ रहा है, इसलिए। But आसिफ फारूकी साहब is absolutely right because there's a very limited opportunity. Yes, गावड़े साहब is back. जी गावड़े साहब बोलिए प्लीज। नहीं, देखिए, पेपर लीक की घटनाएं जहां पर हुई है, जैसे यूपी में आपने बात किया या फिर राजस्थान में, वहां पे कार्रवाई की गई है जी। नीट के बारे में भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जजमेंट आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है ये कोई बहुत सिस्टमेटिक या फिर सिस्टमेटिक उसको लीक किया गया है, या फिर उसके पीछे मतलब बहुत बड़ा कुछ ये मतलब सिस्टमेटिक फेल्यूर है, ऐसा नहीं है। कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ जरूर हुई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है और उसके डायरेक्शन के अनुरूप चीजें चल रही है। देखिए, हमने एनटीए बनाया, मोदी गवर्नमेंट में कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस करने का प्रयास किया, हमने एनटीए बनाया, उसके थ्रू नीट कंडक्ट कर रहे हैं। आप जानते होंगे पहले जब स्टेट्स के इसमें था तो किस तरीके से जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स थे वहां पे सीट्स भरी जाती थी, आप जानते होंगे उसमें कितना भ्रष्टाचार होता था। आज उसके ऊपर कुछ हद तक हमने कंट्रोल लाया है थ्रू नीट। तो कुछ हम सिस्टमैटिक चेंजेस कर रहे हैं, कुछ वहां पे दिक्कतें आ सकती है उसको हम फिर से दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप मोदी गवर्नमेंट ने इस देश में बहुत सालों बाद शिक्षा नीति लाई है, नई शिक्षा नीति लाई है, जिससे हमने जो हमारे युवा है उसको एक अच्छा स्किल्ड युवा कैसे तैयार होगा, उसको अच्छा एजुकेशन कैसे मिलेगा, इसकी भी हमने पूरी चिंता की है। तो ओवरऑल युवाओं को हेलो, आवाज आ रही क्या?
जी हाँ, युवाओं को ध्यान में रखकर बहुत अच्छे तरीके से स्कीमें लाई जा रही है, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, स्टैंड अप इंडिया होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा, या फिर मुद्रा के थ्रू होगा, देश के युवाओं को उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई। Now, I want to ask something, Maharashtra related topic. गावड़े साहब, शरद पवार साहब ने रिसेंटली कहा कि he fears that Maharashtra will become Manipur. Now, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। शरद पवार कोई छोटा नेता नहीं है, वेरी सीनियर लीडर है, बहुत पॉलिटिक्स देखा उन्होंने। पहले आरोप था कि मोदी जी कुछ मणिपुर पे बोलते नहीं बोलते, आज उन्हें क्लियर कट कहा कि महाराष्ट्र मणिपुर जैसा नहीं हो। क्या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है मणिपुर जैसे महाराष्ट्र में? क्या शरद पवार जी को इस बोलने के लिए क्या मोटिवेशन था? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर शरद पवार टू गिव द स्टेटमेंट महाराष्ट्र टर्निंग टू मणिपुर? गावड़े साहब, देखिए, मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ उससे अगर हमको कुछ सीख लेनी चाहिए तो वो ये है कि आरक्षण जैसा जो संवेदनशील विषय है उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए और जनता की दिशा भूल नहीं करनी चाहिए, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। आज शरद पवार और यूपीए महाराष्ट्र में क्या कर रही है, इनकी भूमिका क्या है? आज लोग पूछ रहे हैं कि शरद पवार की भूमिका क्या है, कांग्रेस की भूमिका क्या है, और उद्धव ठाकरे के घर के बाहर तो आज आंदोलन हुआ कि उद्धव ठाकरे बताए कि महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेकर जो बात चल रही है उसमें उनकी भूमिका क्या है। एमवीए वाले क्यों नहीं बताते महाराष्ट्र में कि उनकी इस बारे में क्या भूमिका है कि मराठा समुदाय को ओबीसी में से रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये दोनों तरफ की मलाई खाना चाहते, यही इन्होंने इलेक्शन में किया। ये ओबीसी को भी गुमराह करना चाहते हैं और मराठा समुदाय को भी गुमराह करना चाहते हैं। तो ऐसी राजनीति जो हमने वहां से मणिपुर से सीख लेनी चाहिए कि आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पे जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो शरद पवार महाराष्ट्र में कर रहे हैं। शरद पवार की भूमिका क्या है वो शरद पवार ने कभी बताई है क्या? शरद पवार कह रहे हैं क्या कि मराठा समाज को ओबीसी में से रिजर्वेशन देना चाहिए, या फिर यह भी कह रहे हैं क्या कि ओबीसी में से नहीं दे सकते? तो शरद पवार जैसा सीनियर लीडर अगर इस तरीके से दोगलापन करेगा तो फिर यह चिंता की विषय है। तो और जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर की बात है, महाराष्ट्र की जनता प्रगल्भ है, महाराष्ट्र की जनता जानती है, तो इसकी वजह से महाराष्ट्र में ऐसी कुछ परिस्थिति नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन शरद पवार जैसे और कांग्रेस के और यूबीटी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति बने और उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दो समुदाय एक दूसरे के सामने आए। फारूकी साहब, ये आप पे आरोप है कि आप महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहते हो। आप ये रिजर्वेशन के जहर को और फैनिंग, आप उसको फ्यूल दे रहे हो, उसमें तेल डाल रहे हो ताकि इसको और शरद पवार जी का स्टेटमेंट एक बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। फारूकी साहब, आपने सुना बीजेपी के आरोप आप कर रहे हो, आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र। बिल्कुल सही कहा सर। ये लोग बगैर डेटा के, बगैर किसी ग्राउंड वर्क किए हुए अपनी फैसिलिटीज दे के ये वोट बैंक जमा करना चाहते हैं, जिसको कांग्रेस या दूसरी हमारी जो इंडिया पार्टनर है वो बिल्कुल नहीं, वो कंसेंसस करवाना चाहते हैं कि आप नहीं, पहले वो पता है यूपीए की भूमिका क्या है इस विषय पे? नहीं, महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या है? महाराष्ट्र में जो आरक्षण का प्रश्न तैयार हुआ है उसके ऊपर महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या है वो बताइए। वो उसके ऊपर बोलते हैं, आप डिबेट कर लीजिए और नहीं बोलिए ना, जो रियलिटी आप है बताइए, आपका कुछ स्टैंड है कि नहीं है? अननेसेसरी किसी को के बारे में कोई भी बात ऐसी ना कहिए। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ साहब, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, महाविकास आघाड़ी आपका यहाँ पे अलायंस है, उस अलायंस की महाराष्ट्र में जो आरक्षण की स्थिति बनी है उसके ऊपर भूमिका क्या है? नहीं, आरक्षण के लिए हम डिबेट कर सकते हैं और हम डिबेट का क्या प्रश्न है? हम चाहते हैं कि उसके ऊपर आप कंसेंसस करा के रियलिटी पता कर ले कि भाई इसका मतलब है ये आपका दोगलापन है, आप भूमिका लेना ही नहीं चाहते इस विषय में। नहीं, आप जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। हम रियल लोगों को देना चाहते हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स। कौन रियल लोग? हाँ, वही, इसीलिए तो हम डेटा चाहते हैं कंसेंसस का कि हम कि कौन लोग हैं जो जिनको आरक्षण देना चाहिए, वरना आप देखिए महाराष्ट्र में जो आरक्षण का प्रश्न बना है उसमें ये मांग की जा रही है कि मराठा समुदाय को, सभी को ओबीसी में से रिजर्वेशन दीजिए, ये मांग है। उसके ऊपर आपकी भूमिका क्या है? रियल डेटा हमारे पास है नहीं। वही राहुल जी पहले दिन से बोले हैं कि पूरे देश का आप कंसेंसस करवाइए कि कितने परसेंट कौन माइनॉरिटी के लोग हैं, कितनी दूसरी जाति के लोग हैं। ये दोगलापन है। आपकी ऑडियंस देख रही है कि महाविकास आघाड़ी की जो
महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं इस विषय में वो भूमिका नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो मराठा समुदाय को भी भ्रमित करना चाहते हैं और ओबीसी भी करना चाहते हैं। मैं ये आपको यही बता रहा था, मणिपुर से अगर कुछ सीख लेनी है तो वो यही है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए जो आप कर रहे हैं। नहीं सर, आप कंसेंसस करवा लीजिए, पूरे देश का करवा लीजिए, रियलिटी पता कर लीजिए कि कौन से समाज के कितने लोग हैं, और इस हिसाब से आप जो भी है महाराष्ट्र में प्रश्न नहीं है वो महाराष्ट्र में। और प्रदीप गावड़े साहब, सीधी सादी बात है, जो स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाया गया था मराठा आरक्षण के लिए, वो तो यूनानिमसली पास हुआ है, उसमें तो कांग्रेस ने भी वोट दिया है, महाविकास आघाड़ी सबने वोट दिया है कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। नहीं वो रिकॉर्ड पे कहे सर, ऑन रिकॉर्ड असेंबली से ज्यादा और ऑन रिकॉर्ड क्या हो सकता है, ये बताइए। ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, उसमें सभी ने कहा कि ओबीसी में से नहीं दे सकते, ओबीसी में नहीं दे सकते। पार्लियामेंट, हाँ, असेंबली का सेशन में सभी ने कहा ओबीसी में से नहीं दे सकते। तो ये बात बाहर क्यों नहीं कर रहे जी? अलग अंदर बात करनी है, अंदर अलग बात करनी है, बाहर अलग बात करनी है। तो ओबीसी में देंगे भी कैसे? फारूकी साहब, क्या ओबीसी कोटा में से रिजर्वेशन देना चाहिए मराठाओं को? सर, मैंने आपको फिर से एक बार मैं आपको बोलूंगा कि जिनका जो हक है बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं आपका हक निकाल के दूसरे को दे दूं, ये जायज बात है क्या सर? इसीलिए हम कंसेंसस कराना चाहते हैं, और उस कंसेंसस के ऊपर हम चाहते हैं कि जो रियलिटी आए उसके ऊपर आप काम कीजिए। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है फारूकी साहब, आपसे बड़ी विनम्रता से और आदर सत्कार से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हक होता है कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का। आप करवा सकते हैं, कर्नाटक में आपने करवाया है, उसके फिगर्स आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में करवा लीजिए, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सरकार है, करवा लीजिए। प्रॉब्लम क्या है सर? वहां करवा लीजिए और उसको इंप्लीमेंट करिए, सेंटर की अनुमति से इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सेंटर ने अनुमति नहीं दी तो आपके पास एक और पॉलिटिकल पॉइंट आ जाएगा, देखिए हमें नहीं करने दे रहे। आसिफ फारूकी साहब, आपसे पूछ रहा हूं, कर्नाटक सर, हम कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहते हैं। हम देश के एक स्टेट के अंदर हम करा लेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। करवाया तो था सर आपने, बिहार में जब आप सरकार में थे तब तो करवाया था, ऐसी क्या बात है? लेकिन चलते चलते एक छोटी सी चीज गावड़े साहब आपसे और आसिफ फारूकी साहब आपसे जानना चाहता हूं। आज अनुराग ठाकुर जी ने इनफैक्ट ये तक कह दिया राहुल गांधी को कि वो जातीय सेंसस करवाना चाहते हैं, जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं जिसको अपनी जात का पता नहीं, ये उन्होंने बोला। ये शब्द जो है फिर ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उन्होंने रिकॉर्ड से निकाल दिया। गावड़े साहब, ये कहां की भाषा है? ये दिस इज नॉट राइट। यू आर टॉकिंग अबाउट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ही हैज अ कैबिनेट रैंक। अगर वो कुछ मोदी जी के बारे में उल्टा बोलते हैं वो उसके ऊपर भी बिल्कुल एकदम कटाक्ष होना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई शख्स इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करता है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर भी आप सब लोगों को कटाक्ष करना चाहिए। गावड़े साहब, ये मेरा ओपिनियन है, आप बताएं। नहीं, देखिए राहुल गांधी किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट की कुछ मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं क्या? कल स्पीकर ने उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से फोटो नहीं दिखा सकते, फिर भी वो बार बार वो फोटो दिखा रहे हैं वो सेरेमनी की। वो क्या होता है उस सेरेमनी में, क्या पॉइंट? हर बात में राहुल, लेकिन ये कहना कि जिसको अपनी जात का नहीं पता, ये क्या मतलब हुआ सर? नहीं, इसके पहले एक रमेश भिदूरी साहब हुआ करते थे जिन्होंने एक मुस्लिम एमपी को कटुआ बुला दिया और ना जाने और क्या क्या बुला दिया, वो भी बीजेपी के ही थे सर। ये क्या है? ये ऐसी भाषा? नहीं, राहुल गांधी ने कहा था मोदी को मारना चाहिए सर। पार्लियामेंट में नहीं कहा, पार्लियामेंट के अंदर नहीं कहा था, पार्लियामेंट के अंदर नहीं। मोदी जी के बारे में डिक्शनरी भी जो नहीं हो मानता हूं उन्होंने ये कहा था राहुल गांधी और कांग्रेस। सर अब आप कांग्रेस वाली बात मत करिए। जैसे कांग्रेस के लोग बार बार आकर के कहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए प्रॉमिस किए थे, मोदी जी ने नहीं किए थे। मोदी जी ने ये कहा था कि अगर पूरा काला धन वापस आ जाए तो भारत के हर शख्स के अकाउंट में 15 लाख आ सकते हैं, ये कहा था उन्होंने। ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा। अब वही बात आप कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर इनकी सरकार चली जाती है तो लोग मोदी जी को और अमित शाह जी को उनकी पीठ पे डंडे मारेंगे, ऐसा कहा था। जी बोलिए। मोदी को कहा था, जी को नहीं कहा था। जी मोदी को। सर मैं तो जी बोलूंगा ना, सर मैं तो जी बोलूंगा। नहीं, फिर
मैं तो जी बोलूंगा। वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो राहुल गांधी सर मैं तो देखिए, जी अगर बोलूंगा ना। पार्लियामेंट में सर मैं तो अगर जी पार्लियामेंट में किसी ने भी अनपार्लियामेंट्री बर्ताव किया होगा किया तो उसको किया है, पार्लियामेंट और के स्पीकर रिकॉर्ड से साहब की निकालना रूलिंग भी है, चाहिए, और निकालना तो चाहिए, छोड़िए, ये स्पीकर हमारी भूमिका है। साहब ने रूलिंग भी दे दी है कि अनपार्लियामेंट्री, क्वाइट राइट, ओम बिरला जी ने रूलिंग भी दे दी है और इट हैज बीन एक्सपंज्ड। लेकिन मेरा ये कहना है गावड़े साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद इसी बात पे मैं आसिफ फारूकी साहब के पास आऊंगा। आपको लगता नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ये बात हर बार बोलता हूं, जब मैं दिल्ली में था आई यूज्ड टू कवर पार्लियामेंट। सर मैं आपसे बता रहा हूं, हम लोग वेट किया करते थे जसवंत सिंह जी कब बोलेंगे, वी यूज्ड टू वेट, जसवंत सिंह कब बोलेंगे, प्रमोद महाजन कब बोलेंगे, सुषमा स्वराज जी कब बोलेंगी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब कब बोलेंगे। सर इसके लिए हम लोग वेट किया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच सुनने के लिए खचाखच भरा होता था पार्लियामेंट, भले उसके ऊपर कोई हो। वो दौर कब वापस आएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। उस किस्म के वक्ता, उस किस्म के लोग, उस किस्म की सोच, उस किस्म की बुद्धिमत्ता, जहां पर स्पीकर साहब भी मजाक किया करते थे, चुटकुले सुनाया करते थे लोगों को, हंस हंस के सबको बिठा दिया करते थे, वो दौर कभी आएगा वापस या नहीं आएगा? गावड़े साहब पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, जरूर जरूर पार्लियामेंट की सभी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, और पार्लियामेंट देश का सर्वोच्च सदन है, उसका ख्याल रखकर उसी तरीके का बर्ताव वहां पे होना चाहिए। लेकिन आप फिर देखिए कि राहुल गांधी के स्पीचेस कैसे होते हैं पार्लियामेंट में, वो किस मर्यादा में होते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात जब एलओपी, राहुल गांधी एलओपी है, वो खुद जब अपने एमपीज को इशारा करके बताते हैं कि आप वेल में उतरिए, तो राहुल गांधी का आप बिहेवियर देखिए, वो किस तरीके से एक गैर जिम्मेदाराना हरकतें और बयान वहां पे कर रहे हैं। वी आर ऑल फॉर, मतलब हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छा बर्ताव हो, लेकिन राहुल गांधी का अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो मुश्किल है। आसिफ फारूकी साहब, सर एलओपी है सर, पूरी बात सुन लीजिए। आधिकारिक तौर पर वो पहली बार उनको पोस्ट मिली है, इट्स अ कैबिनेट रैंकिंग पोस्ट। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कैबिनेट रैंकिंग पोस्ट, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, ठीक है सर। पहली बार वो आधिकारिक तौर पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने, यानी नेता प्रतिपक्ष बने। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बर्ताव है, वो गैर जिम्मेदाराना है। अब आप बताएं आसिफ फारूकी साहब। सर हम लोग जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे आज से 30 साल पहले, तो हमको एक लैंग्वेज बोली 10 साल जाती पहले, थी, चलिए बोलिए। हाँ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जी। तो हमने पहले पूछा स्कूल के, इसका क्या मतलब होता है? तो बोले कोई भी ख़राब बात जो है वो उसको पार्लियामेंट्री और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि आप अगर पार्लियामेंट के अंदर हैं तो आपकी ज़ुबान बहुत ही शुष्ता और बहुत ही अच्छी होना चाहिए। इसकी मर्यादा कांग्रेस जब तक रही उसने अपने आप को संभाल के चला, और वो यहाँ तक कि इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी जी, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त वर्डिंग्स और इतनी लैंग्वेज यूज़ की कि हम उनके जब देखते थे पार्लियामेंट में वो बोलते थे तो आशश करते थे, तारीफ़ें करते थे, उनकी सुनने के लिए बैठे रहते थे और उनसे सीखते थे। लेकिन जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है सर, ऐसे ऐसे गंदे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं कि आपके इस प्रोग्राम में भी मैं नहीं बोल सकता हूँ सर। मुझको लगता है प्रदीप जी, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस किस्म की प्रथा, इस किस्म की शुरुआत बीजेपी ने जिस तरीके से की है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ तक जाएगी। मेरा जो छोटा सा दिमाग है, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ऑफ कोर्स राहुल जी एग्रेसिव हैं, लेकिन टिट फॉर टैट है, क्योंकि इससे गैर जिम्मेदार आप उसको बोलिए, आप, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आप बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ नहीं की है। आप उन्हीं की एक आपकी एमपी हुआ करती थी स्मृति ईरानी, जिस किस्म की वो लैंग्वेज यूज़ करती थी पार्लियामेंट के अंदर, हमको शर्म आनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके के लोगों को नाम गलत लिया होगा। महुआ मोइत्रा का नाम लेना चाहते होगे? स्मृति ईरानी नहीं, महुआ मोइत्रा ने तो बातें कही है। आप लोगों के लगाम लगा दिया है। ईरानी ने क्या अनपार्लियामेंट कहा? मेरे ख्याल से कौन सी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? अगले 6 महीने के अंदर मुझको ऐसा लगता है कि ये एग्रेसिवपन रहेगा तो ये सारे बीजेपी वाले बैकफुट पे आ जाएंगे, और मेरे ख्याल से इन लोगों को पार्लियामेंट्री लैंग्वेज उनको बोलना पड़ेगी, और अपना पार्लियामेंट जो है सिस्टमेटिक
तरीके से आ आसिफ जाएगा। फारूकी साहब, एक लास्ट में पूछना, महाराष्ट्र में शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे ने शंकराचार्य के पैर धोए वगैरह वगैरह, और सीएम बोला कि ये सीएम है, इससे सीएम बनाओ, जनता से अपील किए। मगर जो लाड़की बहना स्कीम है, लाड़का भाऊ स्कीम है, ये सब स्कीम को आपको लग रहा है कि आप लोग जीत पाओगे? बिकॉज वो फॉर्म लेने के लिए स्टैंपेड चलो पूरे महाराष्ट्र में, एक जबरदस्त स्कीम्स हो गए, लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, तो कैसे जीतोगे आप फारूकी साहब महाराष्ट्र? ये बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, कैसे जीतेंगे? ये सिर्फ जीत हार के लिए स्कीम आई है, ये इम्प्लीमेंट होने वाली नहीं है, इसका प्रैक्टिकल कोई होने वाला नहीं है। सब आप फॉर्म लेके आप अपने घर पे स्टैंपिड करिए और वोट इनको दीजिए। ये स्कीम इसकी है सर, वो मेरे ख्याल से ये स्कीम आने वाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है फारूकी साहब, आप इसको जरा लाइटली ले रहे हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मध्य प्रदेश में यही लाडली बहना स्कीम की वजह से आदरणीय सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान साहब जो हैं वो इतनी ज़्यादा सीटें ले गए, पहले मध्य प्रदेश की असेंबली इलेक्शंस में और उसके बाद लोकसभा की इलेक्शंस में। इसको लाइटली मत लीजिए सर, ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 15 अगस्त को वो शायद पहला डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेक्स करने वाले हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं। August 31 इज द लास्ट डे फॉर फिलिंग अप द फॉर्म सर्टनली, बट जिन के फॉर्म्स एक्सेप्ट हो गए हैं 15 अगस्त को उनको पहले पैसे मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास जब इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, उसके पहले बहुत लोगों को पैसा मिल चुका होगा। तो देख लीजिए सर आसिफ फारूकी साहब। सर ये 1% लोगों को इस तरीके का छलावा दे के ये अपना वोट बैंक करना चाहते हैं, इसी तरीके की स्कीमें ये लाए हुए हैं और इसी तरीके से करेंगे। लेकिन पब्लिक अब इस वक्त बहुत ही सतर्क हो गई है। लेकिन एक बात तो ठीक है सर, आज की तारीख में नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, जेब में लोगों के पैसे नहीं है और कीमतें बहुत बढ़ गई हैं सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब उसका जवाब जो है वो प्रॉब्लम क्या है कि what I wanted to ask Mr. Gowde, of course he is disconnected now. The problem is sir that we have growth. It may be 7%, it may even go up to 9%. ऐसी क्या बात है, आप 9% कर लीजिए, डिपेंड्स, सारे स्टेटिस्टिक्स आपके हाथ में, हम 9% कर लीजिए, उसमें क्या है? But it is jobless growth, sir. There are no jobs. Correct. Sir, it is jobless growth. Your GDP is growing, certainly. Gross domestic product is huge. There are huge leaps. But where are the jobs? Sir, हिंदुस्तान जो है वो वहाँ पर हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को इस किस्म के प्रोजेक्ट्स चाहिए जहाँ पर लोगों को काम मिले। यहाँ पर ऐसा हो रहा है सर, जैसे प्रदीप जी और मैं अक्सर डिस्कस किया करते हैं, ये प्रदीप जी ने पॉइंट आउट किया, आज की तारीख में जो रोड बन रही है, जो ब्रिजेस बन रहे हैं, बाकी सब बन रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे सारी सिर्फ मशीनें काम करती हुई दिखती हैं, लोग काम करते हैं। हमारे नौजवान रशिया में जाके जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जॉबलेसनेस है सर। सर इजराइल में लड़ रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं सर, वो भूल गए आप, गाजा में काम करने को तैयार हैं और दूसरे देशों में जा रहे हैं सर। जी, हर दूसरे देश में जा रहा है हर एक कोई। हाँ, तो वो ये इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है नौजवानों के लिए, यहाँ काम नहीं है, जॉबलेसनेस है और वो परेशान है सर। लेकिन फिर भी व्हाट मिस्टर अनुराग ठाकुर सेड टुडे इज नॉट कॉल्ड फॉर, दैट इज नॉट राइट, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सर ये इससे पहले उन्होंने जो कठुआ कहा था सर, इतना वो बिधूरी साहब ने कहा जी, इस बार उनको टिकट नहीं मिली है, वो दूसरे बिधूरी हैं जो जीत के आए हैं वहीं से दिल्ली। बट वो आरएसएस ने भी इस चीज का आलोचना की कि द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिबेट, पॉलिटिकल टॉक हैज फॉलन डाउन, एरोगेंस हैज क्रीप्ट इन। होपफुली क्या बीजेपी आरएसएस के बात मानेंगे, उनके समन्वय समिति में बात हुआ नहीं हुआ? हार का आलोचना आरएसएस ने किया था कि आपने जो लेवल ऑफ पॉलिटिकिंग टॉक्स वो बहुत डिस्गस्टिंगली लो है। आरिफ फारूकी साहब जो आप कह रहे हैं जी, आरएसएस ने भी पॉइंट आउट किया कि ये कुछ शोभा नहीं देता। होपफुली बीजेपी माइट चेंज नहीं, इसे वो आरएसएस के बोलने। सर एक चीज मैं पूछना भूल गया हमारे गावड़े साहब से, आपसे पूछ लेता हूं। ही इज सेइंग समथिंग। जी बोलिए सर। ये आरएसएस या किसी के बोलने से सुधरने वाले नहीं है। ये एग्रेसिव जो हुए हैं इंडिया ब्लॉक वाले, उनकी ये वो बोलते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, ये एग्रेसिव हुए हैं अभी जो इंडिया ब्लॉक वाले, उससे वो डरेंगे। और अब मेरे ख्याल से आप देखेंगे अगले 2-4 महीने के अंदर ये सारे जो है बीजेपी वाले अपने सही जगह पे आ जाएंगे सर। सर एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था मैं, लेकिन क्या है कि वो हमारे गावड़े साहब चले गए, मैं उनसे भी पूछना चाह रहा था, मुझे मालूम नहीं था वो क्या जवाब देंगे। सर वो जो आप बोल रहे हैं ना बार बार हर कोई बोल रहा है आंध्र प्रदेश और बिहार की बैसाखी के ऊपर आज की तारीख में मोदी जी चल रहे हैं और बजट उन्हीं का है।
सर जो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिए हैं वो दिए नहीं है, ग्रांट नहीं है वो, उनको ये कहा है कि आपको लोन दिलवाएंगे। सर सुन लीजिए ध्यान से, ये कहा गया है कि 15,000 करोड़ का आपको लोन मिलेगा वर्ल्ड बैंक से, जिसके लिए सेंटर गारंटी देगा। दैट्स इट। आंध्र प्रदेश पहले से ही रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है। आप खुद सोच लीजिए जो इंटरेस्ट बर्डन उसका आएगा आंध्र प्रदेश कैसे लौटाएगा, क्योंकि 15,000 करोड़ में तो कैपिटल बनने वाला नहीं है, वो बनेगा 1,10,000 करोड़ में, ऐसा कुछ इतने पैसे लगेंगे। तो 1 लाख करोड़ का लोन मिलेगा। ये ग्रांट नहीं है सर, ये ग्रांट इन एड नहीं है, बजट की ये बजट एलोकेशन नहीं है, लोन है। इट इज नो सर, इट इज नॉट इवन ए लोन, इट इज द प्रॉमिस टू वर्क फॉर अ लोन फॉर यू, दैट्स व्हाट इट मीन्स। वहां पे लिखा है वी विल ट्राई एंड वी विल फैसिलिटेट 15,000 करोड़ फॉर आंध्र प्रदेश फ्रॉम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। ये है बजट में सर, 15,000 करोड़ दिए नहीं गए। तो सर जुमलेबाजी है। I don't know what I simply don't know what Mr. Chandrababu Naidu is happy about, very frankly. आपका क्या कमेंट है सर, बताएं इसमें। मुझको लगता है ये जुमलेबाजी है, जैसे ये पहले कहते थे, लेकिन चंद्रबाबू जी भी चालाक आदमी है, वो अपना आगे का रणनीति तय कर रहे होंगे और आप देखेंगे कि उसका भी जवाब वो कायदे से देंगे। I hope so. We are all living in interesting times, फारूकी साहब। बीजेपी फोरसाइट है, वो भी अपने आंकड़े कर रहे हैं। राहुल जी जबरदस्त तरीके से अपने फोरसाइट में वर्कआउट कर रहे हैं। शायद आपने कहा चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं। तो एक्साइटिंग टाइम्स फ्यूचर में, बहुत एक्साइटिंग टाइम्स। करेक्ट। और बिहार का भी जो फ्लड रिलीफ है सर, इट रिक्वायर्स ट्वाइस द अमाउंट। 25,000 30,000 करोड़ चाहिए सर उसके लिए। 11,000 करोड़ में कोई काम नहीं चलेगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा बिहार डूब गया है सर, हालत खराब हो रही है। महानदी और कोसी रिवर की वजह से हालत खराब हो गई है, कुछ नहीं बचा है। तो ये बीजेपी आपके लिए जी रही है कल का, इनको इसीलिए राहुल जी बहुत सीधे तरीके से बोल रहे हैं कि आप फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइक यू सेड कि हमारे पास इन बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल है, वो हमेशा यंग नहीं रहने वाले हैं। तो इन 10 सालों में इमीडिएटली हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है और जो कि बहुत ही सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। राइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। सर बीजेपी के गेस्ट चले गए सर, वो वैसे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं प्रदीप गावड़े साहब, लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन सर वो लोग के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो इनके आदमी खुद जो है अब प्राइम मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं सर, और उनको ये रियलाइज हो गया कि देश जो है बहुत बुरी हालत से दो चार होने जा रहा है, जैसा कि अपने पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान और इस किस्म के देश हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ऐसी स्थिति जो है खुदा ना करे कि इंडिया की हो सर। ऐसा नहीं होगा सर। चलिए, हिंदुस्तान के ऊपर वाले का हाथ है सर। हम मतलब वी सर्वाइव एवरीथिंग, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऊपर वाले के ऊपर हाथ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सर इसमें जिस तरीके का बीजेपी गेम खेल रही है सर, उससे बड़ी निराशा है सर। लेकिन सर आप भी तो है ना, आप उस गेम को एक्सपोज कीजिए, ऐसी क्या बात है। हाँ नहीं सर, यूथ के लिए अब तो मीडिया भी जाग गया है सर। अब तो गोदी मीडिया भी थोड़ा बहुत आपकी तरफ आ गया है। जब से मीडिया को बंद कर दिया सर, ग्लास के डब्बे में मीडिया को बंद कर दिया कल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच आसिफ फारूकी साहब, ऑल द वेरी बेस्ट। And that's a lovely picture of Rahul Gandhi behind you, by the way. That's really nice. Handmade painting है सर। हाँ, जबरदस्त, it's really beautiful. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you. Namaskar. Jai. So, basically, the point is, as far as the BJP is concerned, very frankly speaking, I expected better answers. Very frankly, I wish that they could have given better answers, especially with regard to price rise or with regard to the price of diesel and petrol. क्योंकि डीजल, पेट्रोल, LPG सिलेंडर और खाने के पदार्थों के बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीत करके आई थी। ऑफ कोर्स देयर वाज द 2G स्कैम, कोल स्कैम वगैरह वगैरह, और वो कोल स्कैम के जितने लोग हैं आज की तारीख में वापस आ गए, भैया तो बाहर आ गए, बीजेपी चले गए। 2014 में लोग कंधे पर लेके मोदी जी को लेके आए जी, because the economy had fallen from 9.7 to 4.6. It was right. Policy paralysis everywhere. This was what we are talking about right now. No jobs, industries shutting down, industries was a grip of fear of all the central agencies.
and we were always talking about directors moving from one agency to the other. तो ये एक जब एक हालात थे और आज हम वही हालात डिस्कस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट परम चेमा पे है, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, तभी कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरीज हुआ करता था बिकॉज सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गया था, सरकार वाज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल. There's a policy paralysis even now. There Let's be very is clear. And according to Dr. Subramaniam Swamy, the growth rate of the GDP is actually 2.5%. That's what he says. How he says that, I don't know. Even I don't I'll know, have to because ask when the him. World Bank says you're growing at 6.5 and Sir, 7%. World Bank basis. No, if you're saying the World Bank works under Mr. Modi, No, but the World Bank bases, IMF works under bases IMF and World Bank base their analysis on statistics provided by the government. Let's be very and clear. various leading credit agencies. As they- Arun Shuri says, you can play the system. No, But if everybody- if 7% was the actual growth rate, we would see more jobs. Let's be No, very clear. what I'm trying to say, World Bank says it, IMF says it, all the leading credit agencies, they say, all the world. Now, if Prime Minister Modi has everything, everybody under his control, Let's ask. Then he's a great world let's leader. let's ask Dr. Subramaniam Swamy whenever we meet him as to how does he say we are at 2.5 or 3%. He'll be nice. It'll be very interesting to know. But in the meantime.